حقیقت میں موت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اسی لیے موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے نفرت کرتے ہیں۔ بس میں آج ایک بات مکمل کروں گا مختصر میں کہ مومن کی موت کیا ہے۔ اب تک جو تم نے سنا ہے کہ مرتے وقت یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ آئیے اگر مومن کی موت پتہ چل جائے تو مومن بن کر کے مر کے دیکھو، یہ کروڑوں زندگیاں اس موت پہ قربان ہیں جسے موت مومن کی موت کہتے ہیں۔ یہ مومن کی موت کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب الزہد کی حدیث پاک کا وہ آخری ٹکڑا مومن کی موت کے بارے میں۔ مگر مومن سن لو کون ہے۔ ایک بات کہوں مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں کہوں، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ اس کو دیکھو تو اسلام نظر آئے، اٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، بیٹھتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، چلتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے، مسکراتا ہوا دیکھو تو اسلام نظر آئے۔ اللہ اکبر! اگر ایک جملے میں بیان کر دوں کہ چلتا پھرتا اسلام اگر کس کو دیکھ کر کے نظر آتا تھا تو ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں، تمہارے پیر سید ساجد میاں کو تم نے دیکھا ہوگا، ان کو دیکھ کر کے تم کو چلتے پھرتے تصویر اسلام نظر آتی ہوگی۔ مومن وہ ہے جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ ہم تو اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں، مومن کب بنو گے؟ اسلام پسند تو ہوئے ہو، اسلام پسند تو ہوئے ہو، اسلام پابند کب بنو گے؟ مومن کی موت کیا ہے؟ سن لو مومن کی موت کسے کہتے ہیں۔ مومن کی موت کتاب الزہد بخاری شریف کی حدیث کا وہ آخری ٹکڑا جو بار بار ہم اپنے جلسوں میں سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے پیر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ، یہ آپ سنتے ہیں۔ اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ سن لیں مومن کی موت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو اللہ کے لیے ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اپنی زبان میں تردد کہتے ہیں، ملانے کے لیے نہیں، ابھی اس سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے سردی بہت ہے، تردد ہو رہا ہے کہ جلسے میں جائیں یا نہ جائیں، سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے کہ چہلم شریف پہ شرکت کریں یا نہ کریں، محفل ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلیم میاں کو تردد ہو رہا ہے امین القادری کو مائک دیں یا نہ دیں۔ یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کیفیت کو تردد کہتے ہیں، اس انسان فیصلہ نہ کر سکے۔ لیکن ہم اللہ کے لیے یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا پورا مسلک بھی ادب ہے اور پورا مذہب بھی ادب ہے۔ مگر آپ سمجھ چکے ہوں گے ملانے کے لیے اللہ فرماتا ہے، خود فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں وہ رات کو دن میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ آبادیوں کو ویرانے میں بدل دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کشتیوں کو طوفان سے ٹکرا کر کے ختم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ پیدا کرنے والی ماں کی جان نکال کر کے بچے کو ایک لمحے کے بچے کو یتیم کر دیتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ دھوپ میں بارش برساتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ زمین سے پودا نکالتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ شفق کا جمال، افق کی سرخی، ستاروں کی انجمن، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ سب دیتا رہتا ہے، چھینتا رہتا ہے، تردد نہیں ہوتا۔ مگر کیا فرماتا ہے؟ کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مگر جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں ترددی تو مجھے تردد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن جب فرماتا ہے ایک کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مولا وہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا جب میں بندے مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں، اور وہ پسند کرے نہ کرے۔ یہ مومن کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ موت مومن کے وقت قدرت فرما رہی ہے مجھے تردد ہوتا ہے۔ پھر مولا تو کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تو فرماتا ہے میں اس کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ یعنی تم عرس کا میلہ بعد میں لگاتے ہو، اس کے پاس فرشتوں کا میلہ پہلے لگتا ہے۔ ہاں، سردی کے اس موسم میں صابر پاک کی زمین پر بیٹھنے والوں کو نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ سبحان اللہ بولو، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سردی کتنی ہو، عشق صابر کبھی دل
लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल शरीफ का वक्त करीब है, मोमिन की मौत सुन रहे हो, सुन लो बस मोमिन की मौत। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मैं फरिश्तों को उसके पास भेजता हूँ। उस मजमून को कुरान यूं बयान करता है, हजरत मुजाहिद इसकी तफसीर में बयान कर रहे कि यह मजमून क्या है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा बेशक हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, और वो दीन पे डट गए, शरीयत पर डट गए। कब्रिस्तान में चरस और भंग पीने वाले सूफी नहीं है, दीन पर डटने वाले सूफी हैं। शरीयत का मजाक उड़ाने वाले सूफी नहीं है, शरीयत पर डट जाने वाले सूफी हैं। हवा में उड़ने वाले को वली हर एक को नहीं कहा जा सकता, मगर शरीयत पर चलने वाले को वली कुरान कहता नजर आ रहा है। सुम्मा इस्तक़ामू, वक्त होता तो सुम्मा इस्तक़ामू की तफसीर बयान की जाती, उसका वक्त नहीं, लेकिन सुने सुम्मा इस्तक़ामू, जो दीन पे डट गए, खुदा को एक मान के दीन पे डट गए। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि खुदा के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, तो डटेंगे कब इस अकीदे पर? यहां तो हाल यह है कि अभी भी यह अकीदा है कि काली बिल्ली सामने से चली जाएगी तो दिन बुरा गुजरेगा, उल्टी आंखें फड़केगी तो पता नहीं क्या होगा। नादानो, हम वो लोग नहीं हैं, हम तो वो लोग हैं खैर ही व शर्र ही मिनल्लाहि ताला, हर खैर उसी की तरफ से है और हर शर उसी की तरफ से, और उसमें भी करोड़ों हिकमतें हैं। अकीदा तौहीद, अकीदा इस्लाम, अकीदा रिसालत पे डट जाओ, उसकी अलग तफसीर। तो कुरान क्या कहता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये अरबी जबान की खूबसूरती है। मैं उलमा की मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर रहा हूं, आपकी दुआ लेना चाहता हूं। अरबी जबान की खूबसूरती कि हर जबान में वाहिद है और जमा है और किस्सा खत्म है। ये अरबी जबान का हुस्न है, यहाँ वाहिद है, तस्निया है, जमा किल्लत है, जमा कसरत है ना? ये अरबी जबान का हुस्न है। वाहिद जमा पे किस्सा खत्म नहीं होता। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, जमा किल्लत 3 से शुरू होकर 9 पर खत्म हो जाती है, और जमा कसरत 10 से शुरू होकर उसकी कोई हद नहीं होती। अब कुरान क्या कह रहा है? जो लोग दीन पर शरीयत पे डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह के फरिश्तों की जमात नाजिल होती है। न वाहिद का सेगा, न तस्निया का, न जमा किल्लत का, जमा कसरत के सेगे के साथ कहा जा रहा है। 1 2 4 फरिश्ते नहीं आते, बल्कि लाखों फरिश्तों की जमात उनके पास आती है और उनके पास बैठते हैं, बात करते हैं। कहते क्या? अल्लाह तखाफू, घबराना मत, वला तहज़नू, खौफ मत खाना, गम मत करना, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मौत बाद में आ रही है, जन्नत की खुशखबरी पहले सुनाई जा रही है, जन्नत का मुद्दा सुनाया जा रहा है। फरिश्ते बताते हैं ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, जन्नत की ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है। तो वो बंदा मोमिन अल्लाह वाला कहता है फरिश्तों, ये दीदार वहां होगा, यारों से मुलाकात होगी, प्यारों से मुलाकात होगी, रसूल से मुलाकात होगी। जो भी फरिश्ते बताते हैं। तो वो मोमिन बंदे का क्या कहता है? फरिश्तों ये मिलेगा कब? तो फरिश्ते कहते हैं जब तक मरोगे नहीं, रूह नहीं निकलेगी जिस्म के पिंजरे से, तब तक के ये नेमतें नसीब नहीं होना। तो वो अल्लाह वाला खुद कहता है फरिश्तों फिर देर किस बात की है, जरा जल्दी करो ना, हम भी दुनिया से जाने के लिए तैयार है। इधर मोमिन मरने के लिए तैयार होता है, उधर कुदरत उसकी मौत का फैसला करती है। और जब मोमिन दुनिया से जाता है तो हदीस पाक में आता है फरिश्ते लाखों की तादाद, हस्बे मरातीब, किसी के मैयत के लिए 500 आते हैं, किसी में हजारों आते हैं, किसी में 70,000 आते हैं, किसी में लाखों आते हैं, किसी में ताहद्दे निगाह आते हैं, और 2 जन्नत के कफन लेकर आते हैं, और जन्नत के कफन लाकर और फिर मुश्क से ज्यादा कीमती खुशबू जन्नत की लेकर आते हैं। हदीस पाक में आता है उस खुशबू वो जमीन से उठती है, आसमान के फरिश्ते महसूस करते, कहते हैं आज जमीन से कैसी खुशबू उठ रही है। तो कहा जाता है किसी मोमिन की रूह के लिए ये जन्नत की खुशबू लाई गई है। 2 जन्नती कफन लाते हैं और बताएं हजरते मलकुल मौत रूह बाद में निकालते, पहले उसको खुशखबरी देते हैं, ऐ नफ्से मुतमइन्ना
तत्मइन्ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। उसको बशारत देते इसी पे बस नहीं, अल्लामा सुयूती लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहते हैं तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है, और जब उसकी रूह निकलती है आका फरमाते हैं आटे से जैसे बाल निकलता है उसी तरह मोमिन की रूह निकलती है, या भरे हुए मशकीज़े से जैसे पानी टपकता है वैसे मोमिन की रूह निकलती है। और तीसरी तमसील फरमाई, दूध पीता हुआ बच्चा जैसे दूध पीते पीते सो जाता है, माँ का पिस्तान मुंह से छूट जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है, उसको पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि इधर रूह निकल रही होती है, उधर जिसके इश्क में जान दे रहा होता है उस नबी का जलवा सामने होता है। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहराए नजारा तेरा। अरे हुस्ने यूसुफ मौजूद हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, हुस्ने मुस्तफा मौजूद हो तो रूह निकलने की तकलीफ कैसे हो सके। इस शान से मोमिन दुनिया से जाता है, और जब वो दुनिया से जाता है अल्लाह अकबर, फरिश्ते उसकी रूह को उस कफन में लपेटते हैं और खुशबू में बसाते हैं, और उस जब पहले आसमान पे जाते हैं तो कहते कौन है, तो दुनिया में जिस नाम से उसको पुकारा जाता था उसी नाम से उसको बताते हैं, और सारे फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और रहमत की दुआ करते हैं, यहां तक कि सिदरतुल मुंतहा तक उसकी रूह पहुंचती, खुदा के दरबार में उसकी। यही तो बात है, दुनिया में कोई मजहब ऐसा ना मिलेगा जो मौत के दिन खुशी मनाता हो, और ना कोई मसलक ऐसा मिलेगा जो मौत के दिन खुशी मनाता हो। मजहब में इस्लाम है और मसलक में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। सब तो मरण दिन को गम का दिन मनाते, ये सुन्नी ही है जो मौत के दिन को उर्स का दिन करार देते हैं। वजह किसका मर के कहा गया ये वो जाने, जो हमारे होते हैं वो खुदा का विसाल पाने का शरफ हासिल करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, बड़े मजे में कहते हैं, सुन्नियों अगर नबी से वफा की है और सच्चे मोमिन बने हो तो जितनी खुशी मदीने जाने में है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। यकीन तो पैदा करो। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते आते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों की शक्ल जो आपने बताई अब मुझे डर लगता है। क्या शक्ल है फरिश्तों की? देगों की तरह आंखें, शोले उगलती हुई, उनके दांत बैल के सींग की तरह, उनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक बाल ही बाल, उनके नाखून लोहे के जमीन चीरते हुए आते हैं, इतना बड़ा हथौड़ा लेकर के आते हैं, अगर जिन और इंस मिलके उठाना चाहे तो ना उठा सके, और आकर जोड़ करके कहते हैं मर रब्बु का, बताते हैं रब को। या रसूल अल्लाह, आपने जो जब से नक्शा खींचा है मुनकर नकीर का, मुझे तो नींद भी नहीं आती। आका ने फरमाया वो औरों के लिए है, जो मेरे वफादार है उनके लिए वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि उनकी आवाज जो सच्चा मोमिन वफादार होता है उसको ऐसे चिंगाड़ की नहीं आती, ऐसे नहीं आती उसको आवाज, अल्लाह अकबर। तो कहा फिर उनके लिए तो कुछ और ही माहौल है, बल्कि नकीरैन, मेरे इमाम ने कहा नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, हुजूर से अगर वफा कर लो नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिले। बड़ी इज्जत के साथ पूछते हैं इनके बारे में क्या कहते, किन के बारे में? हुजूर की शक्ल दिखाई जाती, बल्कि हुजूर, हम सुन्नियों का अकीदा है, हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अरे बताओ, जब हुजूर आ गए तो गम किस बात का? वल्लाह वो यसरब की मिट्टी पर कदम रखते तो वो मदीना हो जाए, अगर वो हमारी कब्र में कदम रखते तो वो भी जन्नत के बागों में से बाग हो जाए। हुजूर कब्र, इनके बारे में क्या कहता था? तो क्या कहते थे? अरे जब साबिर पाक को अपनी तरह नहीं समझते थे तो उनको अपनी तरह कैसे समझे? जिनकी जमात में साबिर जैसा नहीं है वो अपनी तरह समझते अपने आप को साबरी कहकर। साबरी कहलाना और है, साबरी बन जाना और है। किसी को दाम में समेटने के लिए साबरियत का टाइटल लगाना और है। याद रखना, टोपी का कलर साबरी नहीं बनाता, या साबरियत का टाइटल साबरी नहीं बनाता, जब तक साबिर पाक की तरह की
जरूरी है। याद रखना आपके इर्द गिर्द बहुत है साबरी कहने के बाद भी साबिर पाक वाला अकीदा नहीं है, क्योंकि साबिर पाक ने तो कभी ना अपने दादा को अपनी तरह समझा ना अपने नाना को अपनी तरह समझा। ये कौन से साबरी है? अल्लाह अकबर। अरे तुम साबिर पाक जैसे नहीं हो सकते। 12 मिनट खड़े होते हो तो कमर दर्द करने लगती है, बल्कि 50 साल की उम्र में कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हो। ताना नहीं दे रहा हूं, उनको कह रहा हूं जो लोग इसके काबिल हैं उनको कह रहा हूं। लेकिन ये हमारा साबिर है जो 12 साल तक के खड़ा रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर कभी किसी मर्ज का इजहार ना हो सका। साबिर की तरह खड़े नहीं रह सकते, साबिर पाक की तरह। और वहां तो फिर बात ही कुछ और है। नबी को मर के मिट्टी में कहने वालों सुन लो, तुम साबरी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा साबिर तो वो है जो खुद का जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं और बताते हैं जब अली अहमद का ये हाल है तो जो असल अली है उसकी शान क्या होगी, और जो असल अहमद है उसकी शान क्या होगी। जो नस्ल में अली अहमद है उसकी ये शान है, जो नस्ल में अली अहमद है उसकी शान, जो असल में अली भी है और जो असल में अहमद भी है उनकी शान क्या हो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जान। तो याद रखना, जिस जमात में साबिर पाक जैसा नहीं, इसलिए वो अपनी तरह कहते। हम तो नहीं कहते, हम तो अपने पीर को भी अपनी तरह नहीं कहते, हम तो अपने मौलाना को भी अपनी तरह नहीं कहते, हम तो अपने अब्बा को भी अपनी तरह नहीं कहते। क्यों? हमें देखो तो, अपना आप देखो तो कुछ नहीं मिलता, और बाप को देख लो मोहब्बत से तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। तो जब बाप अपनी तरह नहीं है तो रसूल पाक अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? मैं किसी को छेड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कब्र में पूछा जाएगा क्या कहता है, नहीं क्या कहता था। कब्र में तो गुंडों की भी बोली बदल सकती है ना, ये नहीं कहा जाता क्या कहता है। इसलिए कि देश बदलता है तो लोग भेष बदलते हैं। जब दुनिया में देश में भेष बदलते हैं तो कब्र में न बदलेंगे, इसलिए अभी नहीं कहना, अभी का नहीं, ये बता क्या कहता था। बहुत बकबक करता था, मौलवी को तो बहरुल उलूम कहता था और नबी के बारे में कहता था ये तो अनपढ़ उम्मी है? बता, अपना मौलवी बहरुल उलूम और रसूलुल्लाह के बारे में उम्मी वो अनपढ़। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, अल्लाह अकबर कासिम नेमत के लिए कहता था कि वो तो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, जबकि उसी रसूल ने फरमाया मोमिन का कच्चा बच्चा अगर माँ के पेट से गिर जाएगा वो भी अपने माँ बाप की मगफिरत कराएगा। अरे जब कच्चा बच्चा माँ बाप को जन्नत में ले जा सकता है तो सैयदुल मासूमीन की शान का आलम क्या है। इसलिए अकीदा भी दुरुस्त करो। असल खानकाहियत दो चीजों का नाम है, एक तो सच्चा अकीदा और एक तो खिदमत खल्क। और ये दोनों चीजें अगर आप देखना चाहें तो आप सैयदी साजिद मियां के अंदर देख सकते हैं। अकीदे का एतदाल और खिदमत खल्क का आपने तो सुन चुके। मेरे पास वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन मैं बात खत्म कर रहा हूं। तो कब्र में क्या प्यारी प्यारी मनमोहनी सूरत दिखाई जाए हैं? इनके बाद और फिर अगर कहता था उनके बारे में तो फिर क्या कहोगे? जो कहने की आदत थी वही कहोगे। हमारा तो दिल ही नहीं भरता, क्या कहूं, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीद के कहूं, जाने मुराद, मुराद नहीं जाने मुराद, काने तमन्ना कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। सुबह वतन पे शाम गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुबह वाला कहूं तुझे। मुजरिम अपने अब्बू का सामा करूं शहा, मुजरिम अपने अब्बू का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे। और तेरे तो बस वायबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा के खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर से रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, सर्व कद्दे लाला रुखसारे, शराब आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामा का खसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। वो आसन मिन कलम तरक़त तो है नहीं, वो अजमल मिन कलम तली दिन निसा, खुलिक
बर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। जामी कहते हैं आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ ईमा तुई। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, ये इंसान है, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। यहां जो कहने की आदत थी वही कहोगे। क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। लेकिन जब जवाब सही दोगे तो नकीरैन कहेंगे हमें यकीन था कि तू ऐसा ही जवाब देगा। क्यों बेखबर नहीं थे, क्योंकि दुनिया में कहता क्या था मालूम है। तो फिर क्या कहा जाए, तूने सही जवाब दिया इसलिए अब तेरे लिए, तूने सही जवाब दिया इसलिए अब तेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही है। तवज्जो कर ले, तूने सही जवाब दिया इसलिए तेरे लिए जहन्नम की खिड़की खोली जा रही, जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी। कहा अगर सही जवाब नहीं देता तो ये तेरा ठिकाना था, उसको बंद करके कहा जाएगा लेकिन तूने जवाब सही दिया इसलिए तेरे लिए जन्नत की खिड़की खोली जा रही है। पहले जहन्नम की, ताकि पता चल जाए कि अगर 2 नंबरी करते तो कहां पहुंचते। सच्ची अकीदे पे रहे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गरीब नवाज के अकीदे पे, गौसे पाक के अकीदे पे, साबिर पाक के अकीदे पे, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के अकीदे पे। बहरहाल फिर क्या होगा, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। आका फरमाते हैं ता हद्दे निगाह कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक हदीस में है कि मशरिक व मगरिब तक कब्र कुशादा कर दी जाएगी। एक हदीस में है कि 70 गज, यानी तकवे के एतबार से, अमल के एतबार से, यकीन के एतबार, जिसका जैसा मामला होगा ताहद। और फिर क्या होगा, फरमाया जाएगा सुन ले अब, सुन ले अब भाई, ये नजर अभी ना लाए, नजर मियाँ के लाने भाई, मैं लूंगा ऐसे नजर लाना। बात अच्छी लग रही है वहीं बैठो, सुनो पहले, गुरूर से मना नहीं कर रहा हूं, हम तो सूफिया के गुलाम है भाई, नजर कैसे मना करेंगे हैं? लेकिन तरीका बता रहा हूं देने का। बात पसंद आए ना, एक जेब से निकालो दूसरी जेब में रखो, और फजर की नमाज मोहल्ले की मस्जिद में जाके पढ़ो। इमाम साहब से कहना ये तुम्हारी तरफ से भी है, ये अमीनुल कादरी साहब की तरफ से भी है, तुम्हारे दोनों की तरफ से पेश कर देना, तुम्हें भी सवाब मुझे। मेरी तो मेरी नजर है ना, जेब में रखो, इधर मत लाओ। थोड़ा सुनो, गौर से सुनो, बात एंड की तरफ जारी, टाइम अभी ये नहीं है बात करने का। क्या होगा, ताहद नगा कब्र कुशादा होगी और जन्नत का बिस्तर लगाया जाएगा। कौन सा बिस्तर? जन्नत का बिस्तर। कौन लगाएगा? फरिश्ते लगाएंगे। हैं? मैंने कहा जहां जहां लोगों ने दिया, और अगर वो नहीं देंगे जेब में रख के तो वो मेरी अमानत है, देंगे वो। मेरी कौम पर मुझे एतमाद है। हाँ, मियाँ मेरे भाई सलीम मियाँ, मेरे बड़े भाई, वो कह रहे मैं कल को दूंगा तो वो देंगे इंशाल्लाह। और सैयद तो होता ही देने वाला है भाई। हाँ, जब शजरों से सैयद ना पहचाने जाए तो 2 चीजों से पहचानना। क्या? एक उनकी सखावत से, एक उनके अखलाक से। हाँ, याद रखना अच्छी तरह। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बादशाह ने, नाम नहीं लूंगा, सैयदों को कत्ल कर दिया नकली समझ करके। बाद में किसी ने बताया नहीं, वो तो तेरे चुगलखोरों की चुगलियां थी, तूने कत्ल कर दिया। तो उसने कहा फिर अब क्या करूं? का माफी मांग ले। का माफ ना करे तो का असली होंगे तो माफ कर ही देंगे ना। इसलिए कि माफ करना ये तो उनका मौरूसी मामला है। हाँ, नहीं देखते इमाम हसन ने कैसे कैसों को माफ किया, इमाम हुसैन ने कैसे कैसों को माफ किया। अल्लाह अकबर। माफ करना उनका अपना काम है। उनके नाना ने नहीं कहा था जान के दुश्मनों से ला तसरीब अलैकुमुल यौम, बल्कि कैसा सखी होता है सैयद बताऊं? सैयदों का बाप सैयदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, इमाम अली इब्न अबू तालिब। ऐन जंग की हालत में एक यहूदी पे तलवार उठाई, उसने हाथ फैला के कहा अली भीख में तलवार दे दो। उठाई हुई तलवार दे दी। कोई जंग में तलवार देता है? उसने कहा, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा, उसकी बात नकल कर रहा हूं। उसने कहा अली माज़अल्लाह, या तो तू हद दर्जा नादान है, कोई दुश्मन को भी तलवार भीख में देता है, या तू बहुत बड़ा बहादुर है। दूसरी बात सही थी। तो मौला ने कहा क्यों ऐसा कहता है? कहा दुश्मन को भी कोई तलवार हालत जंग में दे देता और निहत्ता होता है। फरमाया ये मेरे घर की रीत है, हम तो मांगने वाले को नहीं देखते दोस्त है या दुश्मन है, जो हाथ फैला देता है उसको अता कर देते हैं। जिस दरवाजे से यजीद भी महरूम न गया,
ہم کہاں محروم جائیں گے؟ یزید نے ہاتھ مانگا تھا، امام نے ہاتھ نہیں دیا چونکہ وہ غیرت تھی، لیکن سر دے دیا، یہ سخاوت تھی۔ ہاں دیا تو اس کو بھی، جہاں سے یزید محروم نہ جائے ہم لوگ کہاں محروم جانے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ بات دور نکل گئی، کیا عرض کر رہا تھا سن لیں۔ جنت کا بستر بچھایا جائے گا، اور جنت کا بستر بچھا کر کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب میری زبان حیا اس کا مکمل تبصرہ نہیں کر سکتی بزرگوں کی موجودگی میں کہ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے، لیکن اتنا اشارہ کر کے ختم کر دوں گا بات کو کہ پہلی رات کی دلہن کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ آپ کو رات کو کیوں سنوارتے ہیں دلہن کو؟ سونے والا بھی کوئی سنورتا ہے؟ جس کو سونا ہے اس کی زلفیں تو بکھرنا ہے، جس کو سونا ہے اس کے کپڑوں کی استری تو ختم ہونی ہے، جس نے سونا ہے اس کی خوشبو نے توڑ جانا ہے۔ پھر رات کو دلہن کو کیوں سنوارتے ہیں؟ یہ دلہنیں بھی اچھی طرح جانتی ہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو مرنے والے کو کیوں سنوارتے ہیں؟ اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سفید جوڑا، خوشبو، عطر، اتنا، ارے لوگ پتہ نہیں کس کو سادگی کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے۔ میں نے کہا جو اپنے کپڑے صاف نہیں رکھ سکتے وہ اپنے دل کیا صاف رکھیں۔ ہاں میلے کچیلے کپڑے پہننے کا نام سادگی نہیں ہے، یا ہلکے پھلکے کپڑے پہننے کا نام سادگی۔ ہم لوگ قادری لوگ ہیں، ہمارا قادری تصوف ہے، لیکن چشتی اس اعتبار سے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم قادری ہو کر کے کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں پیدا ہو پہلے وہ چشتی ہے، بعد میں سب کچھ ہے، کیونکہ قادریت بھی ملی ہمیں چشتیت کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ سلسلوں کو خانوں میں نہیں بانٹتے، اولیاء اللہ خانوں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو پوری کائنات کو اپنے فیضان سے یکساں سیراب کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے سیراب کیا الحمدللہ۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، ہمارا قادری تصور اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا عمل کرو۔ سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ قیمتی کپڑے پہن کے مغرور مت ہونا، یہ سوچنا کہ اس نے پہنایا میری پہننے کی اوقات نہ تھی، یہ سادگی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں ہمارے یہاں تو اسلام کہتا ہے، حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مردوں کو بھی اچھا کفن دیا کرو، کیونکہ وہ کفن بھی ایک دوسرے کا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بھئی یہ قبر 2 گز زمین نہیں ہے صرف مومن کی، اس میں تو رشتہ داروں سے ملاقاتیں بھی ہیں، بیٹھ کر باتیں بھی ہیں، حدیث پاک ہے، اٹھا کر دیکھیں کتب احادیث، یہاں تک پوچھا جاتا ہے نئی آنے والی روح سے میرا بیٹا کیسا ہے اور فلاں کی بچی کیسی ہے، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ قبر میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں۔ پٹتے وہ ہیں جو یہاں پٹنے جیسا کام کرتے ہیں، لیکن مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے الحمدللہ۔ تو وہاں شادی بیاہ کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں معلومات ہے تو اردو زبان میں شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب، اس کا ترجمہ آ چکا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کا یقین پختہ ہوگا موت کتنی خوبصورت چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں موت تحفہ مومن کے لیے محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، شریف گھرانوں کی دلہن اکیلے نہیں جاتی شوہر کے یہاں، بارات کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلمانوں نے بارات کو بھی بدل دیا، بارات ہمیشہ دلہن کے ساتھ جایا کرتی تھی، اب دولہے کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ دلہن کے ساتھ کیوں جاتی تھی؟ اس کو بارات کیوں کہتے ہیں؟ جیسے کسی عمل کرنے والے کو با عمل کہتے ہیں۔ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، طالب علم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غلطی ہوگی تو یہیں سے اصلاح ہو۔ با عمل کہتے ہیں مطلب عمل والا، با وقار وقار والا۔ تو یہ بارات، رات والے، یہ کیوں؟ جب دلہن جاتی تھی رات کو شوہر کے گھر تو محلے رشتہ دار سب اس کو پہنچانے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی لوٹ نہ لے۔ بہت ساز و سامان اور سجی دھجی رہتی تھی نا، ڈاکو اپنا کام نہ کر۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے، چوری چپ کے تو نہیں جاتی شریفوں کی دلہنیں، اللہ اعلان جاتی ہیں، کیونکہ جن کے نکاح چوری چپ کے ہوتے ہیں وہ چوری چپ کے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہ چوری چپ کے نکاح ہے اور نہ چوری چپ کے آنا جانا ہے، ہمارے یہاں تو بارات کے ساتھ ہے۔ لوگ آج بارات کے بھی مخالف ہو گئے، یہ بارات نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا اس کی بھی کوئی حکمت ہے، لیکن بہرحال وہ بارات کے ساتھ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے شریفوں کی دلہن جائے۔ ادھر بھی بارات ہے اور ادھر بھی بارات ہے۔ مومن کا جنازہ نہیں دیکھتے کہ شان کا ہوتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو ساجد میاں کے جنازے کا تصور کر لو، دیکھتے نہیں کتنے جنازے میں لوگ۔ بہرحال تو ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن، اور پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سو گئی، لیکن وہ سوتی نہیں ہے، وہ چادر مخ پر ڈال کر کسی کے منتظر ہوتی ہے۔ گوری سوئے سیج پر، مخ پر ڈارو کیش،
चल खुसरो घर आपने, शाम भई सो देश, सांझ भई सो देश है। हाँ, वो डाल कर चेहरे पे नकाब ओढ़ करके, घूंघट डाल करके, चादर ओढ़ करके सोती किसके लिए? कोई और ना जगाएगा इसको, महबूब जगाए। सब समझते सो गई सो गई सो गई सो गई, लेकिन महबूब के कदमों की आहट आती है और वो उठकर बैठ जाती बिला तमसील। उसको कहा जाए सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती। कौन जगाने? उसको उसका महबूब जगाने आएगा, इसको इसका महबूब जगाने। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किरगुल से मुलाकात की रात। ये मोमिन की मौत का हल्का सा तस्वुर है जो मैंने पेश किया। अगर मैं ज्यादा और पेश करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी में एक दो, इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, आपकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता, मैं इसी पे बात पूरी करता हूँ। अल्लाह साजिद मियाँ के शहजादों को, काब मियाँ, मखदूम मियाँ और जो शहजादे उनके वालिद का सच्चा जानशीन बनाए। उनके वालिद ने इल्मी काम बहुत किया, और जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है उसे मौत नहीं आ सकती। और उसूल बिलाद मुंबई उज़्मा में मैं समझता हूं कि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा दारुल अगर किसी का है तो वो साजिद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कायम करदा है। और कई मकामात पर उन्होंने इदारे कायम किए। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी कौम को इल्म की बड़ी जरूरत है। आप भी इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। हमारे महारेरा के मशाइख ने ऐलान किया है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ, एजुकेशन को आम करो। हर बच्चा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। 10वीं 12वीं पढ़ाकर बच्चों को ड्रॉप आउट मत करो। लोग कहते तालीम महंगी हो गई, नहीं, मोबाइल भी तो महंगा हुआ, जिन्स भी तो महंगी हुई, मकान भी तो महंगे हुए, कपड़े भी तो महंगे हुए, ब्यूटी के सामान भी तो महंगे हुए। क्या कभी तुम जूते का शोरूम ये कह करके वापस लौटे हो कि जूते महंगे हो गए, जूते नहीं खरीदना? कपड़े महंगे हो गए, कपड़े नहीं खरीदना? हर महंगी चीज खरीदते हो, फिर तालीम के महंगा होने का बहाना क्यों करते हो? अगर तालीम महंगी हुई तो सभी तो महंगा हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और खूब पढ़ाओ, इसलिए कि मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने जितना तुम्हें सिखाया उससे बढ़कर तुम अपनी औलाद को तालीम दो, क्योंकि तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार दौर तुम्हारी औलाद का दौर होगा। इसलिए अगर दुनिया की कौमों के बराबर में खड़े रहना है तो आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, भूखे रहना पड़े तो रहो, अपने पेट को मारना पड़े, ख्वाहिशात को मारना पड़े तो मारो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम को आम करो। जितना इल्म आम होगा उतना तरक्की होगी। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, क्यों पढ़ाएं? हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। क्योंकि अनपढ़ के बोलने का अंदाज और पढ़े लिखे के बोलने के अंदाज में फर्क है। अनपढ़ के खाने में पढ़े लिखे के खाने में फर्क है। अनपढ़ के उठने बैठने में पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क है। अनपढ़ के सोचने में और उठने बैठने के सोचने में फर्क है। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अगर लोगों से बराबरी करना है, बराबर खड़े होना है। और साजिद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही काम किया। इल्म पर उन्होंने मेहनत की, मदरसे कायम किए, स्कूल कायम किए, बच्चियों के इदारे कायम किए। ये सिलसिला अल्लाह करे जारी रहे। और हमें हमारे भाई सैयद मखदूम मियाँ साहब से बहुत तवक्कुआत है कि एक अच्छे बाप की अच्छी तरबियत का नतीजा लोगों ने उनकी हयात ही में देखा। हम साजिद मियाँ साहब में जो शराफत देखते थे वो शराफत मखदूम मियाँ में उठने बैठने चलने फिरने में नजर आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में भी वो वैसे ही है, सीरत में भी वैसे ही। इंशाअल्लाह मजीद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह करे जो है वो ये सिलसिला जारी रहे। और फिर क्यों ना हो जिसके सर पर साबिर पाक का दामन हो, फिर बात ही कुछ और है। अल्लाह ताला तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन